Welcome, dear students. Myself is Sumit. Today we'll be doing the second chapter, Self and Personality. In the last lecture, we read about the assessment of personality, in which we talk about the self-report measures, in which there are many tests, which include the Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI, the Eysenck Personality Questionnaire, EPQ, and the 16 Personality Factor Questionnaire, 16PF. In today's lecture, we'll basically focusing on the next technique of assessment of personality, which is the projective technique. The projective technique is taken from the word projection of the psychodynamic theory, in which or where projection is from the unconscious when the person is reflecting thoughts outside onto somebody else or onto the outside stimulus. The technique of personality assessment described so far are known as direct techniques because they tend to rely on information directly obtained from the person who clearly knows that personality is being assessed. In projective technique, a particular stimulus is not clearly defined. The stimuli is relatively or fully unstructured. The person being assessed is usually not told about the purpose of assessment and the method of scoring and interpretation. These tests do not have any right or wrong answers, and they are arising the quality of unconscious mind. These tests are not quantitative like the self-report measure, but this is the quality of these tests. These are very subjective, but again are not very reliable. It gives the qualitative answers. In projective techniques, there are so many tests in which the first test is Rorschach inkblot test. It is developed by Hermann Rorschach. This test is very accurate test, and it consists of 10 ink blots, in which 5 ink blots are in black and white, while 2 are of red ink blots and 3 pastel colors. अगर हम इस रोरसाच इंकब्लॉट टेस्ट की बात करते हैं, तो इस टेस्ट में वी टेक अ पीस ऑफ पेपर, और इस पीस ऑफ पेपर में हम अलग अलग कलर के, जिनमें से 5 ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स होंगे, कुछ रेड कलर के और कुछ पेस्टल कलर के हम इंक प्लॉट्स कर देते हैं, जो कि मेंशन है 5 आर ऑफ ब्लैक एंड वाइट, 2 आर ऑफ रेड
and 3 are of pastel color. और जब हम इनको कलर करते हैं, इसके बाद इस पेपर को हम फोल्ड कर देते हैं ताकि ये जो कलर्स हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं इन दिस पीस ऑफ पेपर। आपकी बुक में भी ये आप देखेंगे तो ये ड्रॉ आपको दिखेगा। ये वही इंक ब्लॉट्स हैं डिफरेंट कलर्स के जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अब इस इंक ब्लॉट से, अब ये इंक ब्लॉट से जो भी एक डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन जो है ये दिया जाएगा और अब इस डिज़ाइन को एनालिसिस करने का काम हर एक इंडिविजुअल का होगा जो भी उस टेस्ट में अपीयर हुए हैं। ऑल द पर्सन जो भी उस टेस्ट में अपीयर हुए हैं वो इस ड्रॉ को देखेंगे, इस इंक ब्लॉट्स को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करके बताएंगे कि उन्हें क्या दिख रहा है इस ड्रॉ में। तो इसके अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो इसकी 2 फेजेस में हम इस टेस्ट की को कंप्लीट करते हैं। देयर आर बेसिकली 2 स्टेजेस। नंबर 1 इज परफॉर्मेंस प्रॉपर and number second is inquiry. What is the meaning of performance proper? इस इंक ब्लॉट को देख के आपके ब्रेन में कोई एक पर्टिकुलर डायग्राम आएगा या कोई एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये जो ड्रॉ है आपको किस तरीके का दिख रहा है। ऐसा कई बार आप हमको तब भी होता है जब हम बादलों को देखते हैं तो हमें बादलों में बहुत तरीके की आकृतियाँ नज़र आती हैं, बहुत तरीके के हमें डिज़ाइंस नज़र आते हैं। कभी हमें लगता है कि ये बादलों में कोई चिड़िया है या ये चिड़िया की तरह कोई एक बर्ड की तरह बन रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इस इंक ब्लॉट को देख के अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करके हमें जो भी इसमें समझ में आता है अपने अनकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके हम देखेंगे कि ये क्या दिख रहा है। और फिर जो जो पर्सन जो साइकोलॉजिस्ट आपका टेस्ट ले रहा है वो आपसे इंक्वायरी करेगा कि आपने भाई अगर इसको आपने कहा कि ये क्रो लाइक है तो क्यों, आपने ऐसे कौन से फीचर्स देखे। तो 2 फेज में 2 स्टेजेस में ये टेस्ट कंप्लीट होता है। एक है परफॉर्मेंस कि आपने क्या देखा और दूसरा इंक्वायरी जो साइकोलॉजिस्ट आपसे इंक्वायरी करेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने ऐसा क्या देखा इसमें। फॉर इंस्टेंस अगर आई सी अ बेड इन द पिक्चर, अगर मुझे एक पिक्चर में कोई बेड दिख रहा है तो व्हाट फीचर आई एम व्यूइंग, मुझे उसमें बेड के कौन से फीचर दिखे। तो इस बेस पे जो टेस्ट होता है इसे हम बोल देते हैं रोरसाच इंक ब्लॉट टेस्ट, RIT। द सेकेंड टेस्ट डेवलप्ड इज द थीमेटिक apperception test, TAT test. It is developed by Morgan and Murray. It is more structured than the ink blot test. जिस इंक ब्लॉट टेस्ट की अभी हमने बात की थी इससे ज़्यादा ये स्ट्रक्चर्ड है। और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स एंड 1 blank card which is given at the end. The thematic appreciation test, अगर हम इस पर्टिकुलर टेस्ट की बात कर रहे हैं, थीमेटिक वर्ड, थीमेटिक मीन्स थीम, थीमेटिक मीन्स थीम, इट अंडरस्टैंड द थीम एंड एक थीम दी जाएगी और उस थीम के अकॉर्डिंग एक स्टोरी आपको बनानी पड़ेगी और उस स्टोरी के बेसिस पे अनकॉन्शियस माइंड को एनालाइज किया जाएगा और उसी स्टोरी के बेसिस पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बेसिकली 4 मेन क्वेश्चंस इस पे होते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं भाई, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, व्हाट लेड अप टू द पिक्चर, व्हाट आर द कैरेक्टर्स थिंकिंग एंड फीलिंग एंड व्हाट डू यू थिंक इज द फीचर्स आउटकम। जब भी हम बात करते हैं इस थ्योरी की या इस टेस्ट की, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की, इसमें जो कार्ड्स दिए जाते हैं विच
जो कार्ड्स होते हैं shows the human figures. Total 30 cards are there. One blank card is there which is given at the end, and the cards is usually based on genders. Some of the cards for males and some of the cards for females. मेल और फीमेल को डिफरेंट कार्ड दिए जाएंगे, एंड सम ऑफ द कार्ड्स आर यूनिवर्सल विच इज given to both male and females. Out of the total 30 cards, at least 20 cards are selected, in which some from the gender, it means some from the male or female, and some other are universal, which are given or which are for all. At the end, one blank card is given on which it is expected the person's unconscious desire will be projected. Finally, जो आपको एक ब्लैंक कार्ड दिया जाएगा, उस ब्लैंक कार्ड में आपकी जो भी डिजायर, आप जो भी उसमें समझे होंगे उन कार्ड्स को देख के, उसको आप उसमें बनाएंगे, आप उसको देखेंगे. The Indian adaptation of TET is also available, और इसको this is not TET, Teachers Eligibility, TAT test is there, which is the thematic appreciation test, apperception test. और जब भी हम ये थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की बात करेंगे तो फाइनली इससे एक ह्यूमन का जो भी अनकॉन्शियस माइंड की डिजायर है उसको हम पता कर सकते हैं. ठीक है ना. और ये जो इंडियन एडेप्टेशन था टेट का, इसको उमा चौधरी के द्वारा ये बनाया गया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टेस्ट which is Rosenzweig picture frustration study. This is called PF study test. It was developed by Rosenzweig, and according to this test usually express aggression in the face of a frustrating situation with the help of cartoon-like pictures in a series of situations in which one person frustrates another. It means इस पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी में क्या किया जाता है, ये एक कार्टून बेस्ड टेस्ट है. कुछ कार्टून्स की मदद से वो कार्टून्स दिखाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, और उन कार्टून्स की मदद से कोई एक फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी बनाई जाती है. उन कार्टून्स को देख के आपको पता लगेगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसे हुए कार्टून है, बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी है, या एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं. और आप उन कार्टून को देख के जो भी पर्सन्स उस टेस्ट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो उन कार्टून्स को देख के, उन कार्टून पिक्चर्स को देख के उनकी सिचुएशन के बेस पे, क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेस पे अपना आंसर देंगे. वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एग्रेशन दिखाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये कैसे हो गया. इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एग्रेशन दिखाएंगे, और इससे हो सकता है निकलने का, इस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन से निकलने का कोई आंसर भी सुझाए, है ना. तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की जाती है ना. और जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन क्या करेगा, ये क्या कहेगा, हम इस बात को समझते हैं. और इससे हम जो इससे क्या होगा भाई, एन अटेम्प्ट इज बेसिकली मेड टू एग्जामिन whatever the focus is on the frustrating object or on projection of the frustrated person. So this one is the picture frustration study test. The next one is sentence completion test. It is a very simple test, as it indicated by its name that this test makes use a number of incomplete sentence. It has stem
It means few starting statement is given, but the statement is not complete. The statement is incomplete. And you have to complete the statement. इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसका एक स्टेम है. स्टेम होने का मतलब है कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो है उसको हम दे देंगे. उसको हम, या जो भी पर्सन ये टेस्ट ले रहा है वो बता देगा, और उस सेंटेंस को आगे कंप्लीट आपको करना होगा, या उसके बारे में आगे को क्या हो सकता है यह आपको लिखना होगा या बताना होगा. फॉर इंस्टेंस, सपोज द स्टेटमेंट सेज माय फादर. अब इसके आगे एवरीबडी अनकॉन्शियस माइंड गिव्स डिफरेंट आंसर. सब लोगों के इसके आंसर जो हैं अलग अलग होंगे. जो भी लोग अपने फादर के बारे में जिस भी तरीके से सोचते होंगे, माय फादर इज़ अ गुड पर्सन, माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इस तरीके से जो भी आप आंसर सोचें इस सेंटेंस को पूरा करने में, वो देंगे. और इस तरीके से डिफरेंट आंसर से हम स्टेट ऑफ माइंड को या अनकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करेंगे. So the test provides subjects with several opportunities to reveal their underlying unconscious motivations. The last one, the last test is draw a person test. नाम से आपको लग रहा है कि किसी पर्सन को हमने ड्रॉ करना है. इट इज़ अ ड्राइंग टेस्ट, बट इट इज़ बेसिकली नॉट अ ड्राइंग टेस्ट. इट इज़ रादर अ टेस्ट which helps one draw out any imaginary person. It is a very simple test in which the subject is asked to draw a person on a sheet of paper, and a pencil and eraser is provided to facilitate. What are the interpretation of this particular test? Omission of the facial features suggests that the person tries to evade a highly conflict-ridden इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. मतलब अगर कोई इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर ड्रॉ बना रहा है इमेजिन से, तो उसके जो फेशियल फीचर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि उस ह्यूमन के किस तरीके के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं. मतलब सपोज अगर कोई पर्सन एक ने ड्रॉ बनाया और उसमें नोज नहीं बनाई, तो इट मीन्स देयर इज अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम. और इफ द ग्राफिक एम्फेसिस ऑन द नेक, अगर नेक पे जो नेक वाला रीजन है उस पर बहुत ही ग्राफिक एम्फेसिस वो इंडिविजुअल कर रहा है बनाते समय, ड्रॉ बनाते समय, इट सजेस्ट दैट लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्स. उसका अपने इम्पल्सिस पे कंट्रोल कम है. इसी तरीके से अगर डिसप्रोपोर्शनली लार्ज हेड, अगर उसने बहुत बड़ा हेड बनाने की कोशिश कर रहा है जो प्रोपोर्शनल नहीं है, डिसप्रोपोर्शनल है, तो इट सजेस्ट दैट द ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज. तो इस तरीके से जो भी इमेजनरी ड्रॉ करता है वो इंडिविजुअल, है ना. और हमेशा इसमें हम कहते हैं द सब्जेक्ट इज जनरली आस्क्ड टू ड्रॉ द फिगर ऑफ एन अपोजिट सेक्स पर्सन. तो इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस इंडिविजुअल में क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं, क्या उसमें चीज़ें हो सकती हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. थैंक यू सो मच.